Hi, good morning to all. हेलो, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया. कुछ असाइनमेंट लिखे हो? हाँ, कल ही मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया था. I have submitted 2 of my assignments for CFD caption. That let me say that you have done the best. Very good. Very nicely done. Thank Yes, you, thank you. So I can't Actually, काफी recollect. मैंने रिसर्च करके बनाया था उसको इसलिए. That's okay. Let me earphone. So when will we start the class? Can you repeat? Hello. Shubham, बोलिए. The class will start at 10:40, right? 10:40. Yeah. Just a few minutes only left. So in the meantime, if you want to ask anything about Koha therapy, you can easily ask me. So what are your plans for after completing your training? Ma'am, if I talk about my plans, then yeah, for the start only, I was very much interested in science and Hello, your voice is breaking. I can't hear anything.
Can you shift a bit? Just come in the network. My microphone has got damaged. So Now, what? now little better. Say. Don't take pause. Hello, Shubham. Hello. Uh-huh. So since start only, I used to follow him. So when I got to know about cohort therapy from Mr. Pradeep, so I got engaged into it. Yeah. So now gradually we'll be hardly few days are there. So today we'll discuss about all what are the products we have, and then how to Do earn you think that money. by only a training of 10 days, we will become experts? Because this naturopathy, immunotherapy, and Dr. Biswarup, this food therapy, it's a very vast, it's a big ocean, right? So 10 दिन में तो हम लोग understand नहीं कर पाएंगे sir. That is understood. The thing is what you know, if you have medical background, so you can pick up very fast. If you don't have, then you can start doing some other way of earning, because there are 21 ways of earning. So you can start by you can choose any place from where we can, any step means there are different ways. So whichever way is convenient, because everyone has the capability based on the qualification, mixing with people, that capabilities varies from person to person. So So it depends on the background what you have, and based on that you can start earning. Besides you are doing whatever you are doing right now, so you can have other side business type of thing, no? Like yes, you yes. So can, before starting, we will get the ID cards, right? of course, if you give exam and if you submit your Aadhaar card, PAN card, then you can get ID. Okay. I had already sent to you, no, I suppose. Yes, yes, yes. So you send me those things, and I'll make you, I'll arrange for your ID. So now the courier services and all will be ready, available. So they will send it directly to you, the ID along with your certificate also. Got it, got it. Okay. Anything else you would like to ask? You could understand power juice, power diet, then super power diet. There have you? Do you have any doubts about it? Because medicine is such a vast subject, it is impossible to cover up in 10 minutes, 10 days. That too, just 1 hour. I can't hear you anything, if at all you are talking. Because your mic is, you have you have to unmute your mic. अभी आप गोआनिक का मशीन बेचोगे तो बहुत सारा पैसा मिल सकता है, कमीशन. फिर सप्लीमेंट्स बेचोगे पेशेंट्स को, तो उससे भी इनकम बढ़ जाता है ना. I'm not telling you that you have to purchase for yourself, but you can start giving it to the affording people who are sufferers. So that is how you can earn money. Rishabh, can you hear me? Okay, you have some network issue. No problem. You can send message, this thing. We can chat along with giving lecture, okay? And whenever you want any help, I am always there, because you will be under me.
Thanks. So what are you doing right now? Are you working? Have you started working after lockdown over? So you started working? You don't stay in Bombay? I thought you are staying in Bombay. हाँ धर्मेंद्र जी, क्या बात है, 1 घंटा जल्दी आ गए। 1 भाई घंटा मैडम नहीं, नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैडम। नमस्कार नमस्कार। थोड़ा लेट हो गया आज। I never expected that you'll come that early. कितने बजे से पूरा स्टार्ट करेंगे मैडम? मैं समझी नहीं, क्या हुआ? मैं क्या सारा रेडी हो गया? कितने बजे होगा स्टार्ट? 40 तो 40 राइट 37 हो गए हैं ना। राइट राइट मैडम, आज मेरे पास एक लाइव मेरा पेशेंट को आया है कल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलेगा जरूर। मैं थोड़ा सा बता दूं कि तभी बताऊं? हाँ बीच में? चलेगा, बोलिए, चालू करिए चालू करिए। हाँ, मैं थोड़ा हेडफोन लगाते हम्म।
हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, मेरे पास मैडम पेशेंट है, एज है लड़की का 22 साल और वेट है उसका 55। तो अ, नहीं, डेट ऑफ बर्थ यू आर सेइंग और एज बोल यू आर सेइंग? नो नो नो, मैं सर एज बता रहा हूँ। टोटल एज है 22। एज, उम्र उसका 22 साल 42, है। 22। 42 ना? नहीं, 22। 22। राइट राइट। ओके। तो वेट उसका है 55 केजी। एज नहीं, वो वेट। अच्छा अच्छा, ओके, वेट वेट। हाँ, हाँ। मेरे को सुनाई दे रहा एज, तो मैं नहीं, मैं मैंने पहले बोल रही हाँ, आज यानी थो- इसमें नेटवर्क में प्रॉब्लम है ना, फिर इसीलिए गलत सुनाई दे रहा था। वेट इज हाँ 55, ओके। हाइट? हाँ। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, पिछले 1.5 साल में उसका एनएस है, एनएस के अंदर उसको एक अपना बॉयल टाइप बन गया है, उसको घाट बन गया है एक। बराबर। हाँ, तो उसमें उन्होंने अपना जो सर्जन है उनको चेक करवाया है, तो उन्होंने बताया कि इसका सर्जरी होगा 2। बराबर है। तो सर्जरी में वो बोले कि एज छोटा है तो सर्जरी नहीं करेंगे इसमें, तो मेडिसिन से ही थोड़ा चलाएंगे। तो ओके। मेडिसिन चला, एलोपैथी मेडिसिन चला उसका 2 से 4 महीने तक। तो हम्म। हाँ जी, बोलिए। हेलो। मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? अभी हेलो। सुन रहे हैं। हाँ। नहीं आ तो रही थी। हाँ, तो उसको सर्जन को दिखाया उन्होंने, तो उसमें उसको प्रिस्क्राइब किया है कि आप 4 महीने मेडिसिन लीजिए, तो आपकी वैसे सर्जरी का है ये, तो सर्जरी से निकाल पाएंगे, लेकिन इसकी सर्जरी है 2 होंगी, एक एक करके। तो लेकिन वो एज छोटा है तो नहीं करेंगे, ये बोला उन्होंने। तो एक 4 छोटा महीने दवाई है। हेलो, 22 साल का है ना? राइट राइट। 22 साल थोड़ी छोटा है। हाँ, ही इज एन तो एडल्ट। राइट राइट। तो तो उसमें छोटा छोटा क्या बोल रहे हैं? छोटा यानी किसको छोटा बोलते हैं? 10-12 साल का हो तो उसको छोटा बोलते हैं। 22 साल को थोड़ी छोटा बोलते हैं। तो 22 साल के बच्चों को बच्चे भी आवाज होते हैं। आवाज नहीं आवाज नहीं प्रॉपर आ रहा है मतलब, पता नहीं चल रहा मैं बोली 22 साल का आदमी को बच्चा नहीं बोलते हैं उसको, वो तो आदमी होता है, उसको तो बच्चे भी हो सकते हैं ना। है। नहीं नहीं, मैंने बच्चा नहीं बोला, वो प्रोनाउंसिएशन शायद हो सकता है थोड़ा गलत। मैंने बोला एज 22 है और वेट 55 है। तो आप छोटा है बोलते रहे ना, इसीलिए वो तो छोटा बिल्कुल नहीं है। राइट राइट। तो अ, आपको पता चल गया मैंने क्या बोला पहले, कि उसके एनएस में अंदर गांठ बन गया। हाँ, मैं समझ में आया। हाँ, तो उसमें उसको सर्जरी जो है वो उन्होंने बोला कि आपका सर्जरी जो है 2 सर्जरी होगा, तो आपका सर्जरी नहीं करेंगे, तो आप अच्छा, मेडिसिन पे जाएंगे आप 4 महीने के लिए। सुनिए, मैं कोहार के थेरापी से उसके लिए क्या करना चाहिए बोलूं क्या? हाँ, मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हिस्ट्री बता रहा हूँ, तो उसके बाद आयुर्वेद पे आए वो। अभी तो अभी अभी उसको और कोई अभी प्रॉब्लम, हम तो बोलते इसलिए हम आपको हार, अभी हम बोलते अभी तो आप उसको सुनते इसलिए रहेंगे। देखेंगे। पहले उसको अल्कलाइन वाटर देना चालू करने का, फिर ब्लड ग्रुप डाइट चालू करो, फिर राइट देते वक्त उसको सीएमडी की दवाइयाँ चालू करो। उसको राइट प्रॉब्लम लिवो केयर दे दो, क्योंकि क्या है, लिवर उसकी काम नहीं कर रही है अच्छी तरह से, तो थोड़ा राइट लिवो टैबलेट्स खिलाना पड़ेगा। और उसके राइट डाइट में फाइबर ज्यादा होना चाहिए। तो हमारे पास इट्स फाइबर नाम का गोलियां मिलती है। तो या तो हम आप सप्लीमेंट्स परचेज करो, डिपेंड्स ऑन हिज अफोर्डेबिलिटी, या तो खुद कुछ भी फाइब्रस वाला फूड फूड मटेरियल उसको खिला सकते हैं। राइट उसको डिटॉक्स करने की जरूरत है। तो ये ऐसी राइट वाली सब चीजें देंगे तो उसका तकलीफें
और थोड़ा प्रोटीन पाउडर भी देना चालू करो तो फिर उसमें फायदा हो सकता है। फ्लैक्स सीड्स दे दो तो जरा इम्प्रूवमेंट आती रहेगी, क्योंकि 22 साल का लड़का है तो फिर उसको जितना स्टैमिना बढ़ा सकते हैं तो ये वाली चीजें देंगे तो उसका स्टैमिना बढ़ जाएगा, इसीलिए। मैडम एक्चुअली फीमेल है, फीमेल है तो भी क्या, फीमेल को तो जो चाहिए ही चाहिए सब कुछ, फिर क्या कैलमैक भी देना चाहिए उसको। राइट। ये अपने थोड़ा, सप्लीमेंट्स में अवेलेबल है टोटल जो आप बोल रहे हैं? हाँ जी, अभी हम चालू जब भी करेंगे तभी सप्लीमेंट्स के बारे में कौन सा सप्लीमेंट क्या देता है इसके बारे में चालू करेंगे। राइट, वेरी गुड। एनीवे, मिनल मैम आने से पहले हम थोड़ा चालू करते हैं, क्योंकि वो शायद वो बिजी होगी माँ के साथ, तो रहने दो। अभी आपको मालूम है मिनरल्स होते हैं जिनकी आवश्यकता अपने बॉडी को होती है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दोज हु हैव जॉइंड, आई एम welcoming you for this seminar. Now आपको सबको मालूम है मिनरल्स दो तरह के हैं, मैक्रो एंड ट्रेस मिनरल। जो ज्यादा लगते हैं उनको मैक्रो मिनरल्स बोलते हैं, लाइक कैल्शियम लगता है बहुत सारा बोन्स के लिए, आयरन लगता है, फिर जिंक होता है, मैग्नीशियम, सोडियम ऑल्सो बहुत सारा लगता है, पोटेशियम, कॉपर लगता है, सल्फर लगता है। लेकिन ट्रेस एलिमेंट्स लाइक आयोडीन, सेलेनियम, कॉपर, फिर फ्लोरीन, क्रोमियम, बोरॉन, लिथियम, सेलेनियम, इस तरीके के थोड़े थोड़े लगते हैं। अभी हम बोलेंगे कि कौन सा मटेरियल से क्या मिलता है। लाइक सल्फर क्या करता है हमारे बॉडी में, स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है। फिर हमारे नेल्स होते हैं ना, नाखून, तो वो ब्रिटल बाल और नाखून इनको टूटते हैं ना बार बार, तो फिर अगर सल्फर मिलेगा तो टूटना बंद होता है। कॉपर किस लिए लगता है, वो इन्फेक्शन के साथ फाइट करने के लिए जरूरत होती है। फिर उसकी उपयोग किडनी फंक्शन के लिए भी होता है, लंग फंक्शन के लिए भी होता है। फिर मैंगनीज नर्वस सिस्टम को हेल्प करता है एंड थायराइड फंक्शन के लिए, आणि मसल रिफ्लेक्स के लिए भी उपयोगी पड़ता है। सिलिकॉन होता है वो भी नेल्स और हेयर को टूटने से बचाव करता है। सेलेनियम होता है वो हार्ट डिजीज को हेल्प करता है। सेलेनियम एकदम पावरफुल है, वो डिटॉक्स करने में भी हेल्पफुल करता है और वो कैंसर सेल्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमें हेल्प कर रहा है। पोटेशियम क्या होता है, जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो वो उसको बैलेंस कर देता है और बढ़ने नहीं देता है, इसलिए हम सेंधा नमक खाने के लिए बोल देते हैं। फिर पोटेशियम नर्वस ब्रेकडाउन के लिए भी उपयोगी होता है, पैरालिसिस के लिए भी उपयोगी फायदेमंद होता है। आयोडीन होता है तो आपने देखा होगा गोइटर वाले पेशेंट्स आयोडीन डेफिशिएंट होती है तो थायराइड ये इनफ सिंथेसिस नहीं होता है ना T3 T4 TSH का, तो फिर वो गोइटर तैयार होता है, तो फिर गोइटर होने की वजह से वेट गेन भी होता है। सो इट अफेक्ट्स थायराइड फंक्शन। तो वो थायराइड फंक्शन एकदम इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए, क्योंकि वेट गेन वगैरह साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं ना, तो उससे बचाव के लिए आयोडीन की जरूरत है। लिथियम होता है वो जब भी कमी आती है ना, तो कोई आदमी जब झगड़ा करने लगता है, ऐसे वाला प्रकार जो बनाता है। तो क्योंकि वो हमारे बॉडी में सेरोटोनिन नाम का हार्मोन तैयार करता है भेजा, तो वो इसकी कमी के वजह से वो आदमी गुस्से वाला ऐसा बन जाता है। तो अगर हम लिथियम देंगे और बैलेंस करेंगे बॉडी को, तो गुस्से वाला भी शांत होना चालू होता है। फिर फ्लोरीन तो आपको मालूम है हमारा टूथ का इनामल होता है, उससे उसको बनाता है, एंड बोन्स के लिए भी फ्लोरीन की जरूरत है, नहीं तो वो ब्रिटल बन जाते हैं ना, टूट जाते हैं ना, इसीलिए। कैल्शियम ऑल्सो अपने बोन्स और टीथ के लिए उपयोगी होते हैं, हार्ट बीट के लिए भी उपयोगी होते हैं।
फिर क्रोमियम एंड वैंडेलियम डायबिटीज के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि पैंक्रियास को में इंसुलिन ये कर होता है ना, तैयार होता है ना, तो these वैंडेलियम एंड क्रोमियम हेल्प फॉर शुगर मेटाबॉलिज्म। तो इसीलिए अगर उनकी कमी होगी तो डायबिटीज आता है, अगर वो नॉर्मल हो जाएंगे तो डायबिटीज की उतनी चिंता नहीं। यानी अगर हम CMD लेंगे ना, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, तो इसमें यही सब चीजें जितना चाहिए शरीर को वो मात्रा में मिलती है। और इसीलिए जब भी इन चीजों की गुस्सा आना वगैरह, बाल झड़ना वगैरह वो कम हो जाता है। और इसीलिए वो हमें दिन में कम से कम 1 ड्रॉप लेंगे ना, नॉर्मल आदमी के लिए बोल रही हूँ, कैंसर वालों को 20-20 ड्रॉप देके उनको तैयार करना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल आदमी के लिए 1 से 5 बूंदे हर दिन लेंगे तो तबियत के लिए बढ़ जाता है, क्योंकि मूड वगैरह अच्छा बन रहता है ना। फिर जिंक आपके मैडम 1 मिनट में। हाँ, मैडम बीच में आवाज कट गया था, तो जो नॉर्मल पर्सन है उसको डोज कितना बोला आपने CMD का? 1 से 5 बूंदे कम से कम लेनी चाहिए, अगर आपको यू कैन अफोर्ड, बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली थिंग ना। इफ यू कैन अफोर्ड तो अच्छी बात है। जितना बॉडी कैसे चालू करने का, CMD का गर्म पानी लेने का, अल्कलाइन वाटर, और उसमें CMD डालने का। और CMD डालने के बाद अगर आज आपने चालू किया 1 बूंद लेंगे, तो अगर वो 1 बूंद तो सहन हो सकता है तो दूसरे दिन दूसरा 2 बूंद डालना चालू करो, 3 करो। ऐसे अगर आप 9 बूंदे तक ठीक हो गए और 10वें दिन लिया तो थोड़ा चक्कर बिक्कर आना चालू होता है, हेडेक आता है, वॉमिटिंग जैसा होता है, तो यानी आपको 9 तक आपका कैपेसिटी है, तो 9 बूंदे रोज ले सकते हैं ना, इस तरीके से। So it should be start 1 drop starting. स्टार्ट विथ, बिकॉज आपके बॉडी को कितना सहन होता है वो आपका थ्रेशोल्ड सहन मालूम होना चाहिए। It's a twice a day, 1 OD और TDS कितनी बार इसको शुरू करेंगे? आवाज कट आवाज कट गया मैडम, कुछ भी पता नहीं चला। अच्छा, आप 1 बूंद लेंगे तो वो ऑब्वियसली 1 ग्लास 200 ml ग्लास में ही लेंगे, लेकिन अगर आपकी 10-12 की कैपेसिटी है तो फिर आप 1 लीटर के पानी में 10-12 बूंदे डालिए और वो 2-3 बार पी सकते हैं ना। तो मतलब मेरे पूछने का है कि इसको 1 ड्रॉप दिन में 1 ही बार शुरू करेंगे, जहाँ उसको दिन में 3 बार करेंगे? यानी देखिए, अगर आपको if you have, it is very costly thing, okay, so right. Yeah, so depending on your budget, so if you can afford, so you can take 4-5 drops per day also. If you can afford 8 to 9 drops, then break it into 2 to 3 times. So it all depends on your pocket also and your body's fighting capacity, that how much it can tolerate. Okay. अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आया? भूमिका पूछना है? यस मैम, समझ में आया। ओके, किसी को पूछना है कुछ भी? राइट मैडम, किसको नहीं दे सकते हैं ये CMD? नहीं, CMD सबको दे सकते हैं, क्योंकि क्या है, जो बीमारी किस लिए नहीं आ सकती है, नहीं यानी बीमारी कब आती है, जब भी किसी की कुछ भी इसमें ये ट्रेस मिनरल में एफिशिएंसी हो जाती है, कम आती है, तो फिर बीमारियां आती है। यानी मैंने बोला ना, लिथियम, फिर सेलेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, ये सबका थोड़ा थोड़ा चाहिए, ट्रेस में मिनरल है। तो फिर अगर वो नहीं मिलेंगे तो फिर आदमी बहुत घोंघना चालू करता है, कि बिना वजह ही झगड़ा करना चालू करते हैं। आपने कि आजू बाजू में देखा होगा, अरे कुछ कारण झगड़ा करना चालू करता है। स्पेशली हमारा बम्बई का ट्रेन है ना, उसमें जो ट्रैवल करते हैं ना, बिना वजह ही झगड़े करते रहते हैं। तो फिर उसमें क्या है, कारण क्या है,
ये मिनरल की डेफिशिएंसी। और एक बार CMD देंगे ना, वो आदमी शांत हो जाता है, वो गुस्सा करता नहीं है। राइट राइट। यानी मिनिमम यू शुड स्टार्ट विथ CMD एवरी डे. If you can afford Tulsi Punch, that is also having beneficial effect. So you can do that way. ओके। I think Minal ma'am is busy today. एक अच्छा, बार मेरा हाँ बोलिए बोलिए। हम लोग क्रोमियम और वैंडेलियम पे पहुंचे थे, उसके आगे नहीं गए। अभी मैंने कुछ पढ़ के नहीं दिखाया मैंने। ठीक है, मैं वापस रिपीट करती हूँ, ठीक है। सोडियम पोटेशियम किस लिए लगता है? आपके नर्वस सिस्टम को, मसल फंक्शंस के लिए। फिर जिंक इसलिए लगता है, इफ यू मिस्ड एनीथिंग यू कैन पिक अप, ओके। जिंक किस लिए लगता है? स्किन के लिए लगता है। फिर आपका टेस्ट सेंस का टेस्ट होता है ना, आपको 5 सेंसेस है ना, टेस्ट होता है, तो फिर टेस्ट का फंक्शन कौन करता है? हेलो जिंक करता मैडम, है। 1 मिनट। हाँ। मैडम आपका आवाज बिल्कुल ही आज बहुत ज्यादा नेटवर्क में खराबी है, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में आपका नेटवर्क थोड़ा है, तो आप थोड़ा आगे पीछे होंगे तो शायद मेरे ख्याल में वो नेटवर्क सही हो जाएगा शायद। नहीं, किसी का भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका भी आवाज बहुत तकलीफ दे रहा है हमें, ऐसा हो रहा है। राइट राइट। क्योंकि दूसरे पार्टिसिपेंट किसी का भी प्रॉब्लम ये नहीं है, कंप्लेंट नहीं है, ऐसा है ना। हाँ जी ठीक। ठीक है, तो फिर वो हमें स्मेल का सेंस आता है, टच का स्मेल आता है, टेस्ट का स्मेल आता है, टेस्ट का हमें फीलिंग आता है ना, तो वो किस लिए होता है? जिंक के लिए। कभी कभी कुछ Hello. लोगों को जिंक की डेफिशिएंसी होती है, तो ये सेंसेस कम हो जाते हैं। फिर Hello. प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। Hello, ma'am. हेलो। Yeah, sorry to interrupt, but there is a voice breakage and lag. So, yeah, we sometimes cannot understand. Since he was asking the doubts, we were covering up. या मैं वापस कंप्लीट कर रही हूँ ना। Yeah, sure. But I'm just saying, like, there's a network issue. If you can try and get into some better network area. Yeah, I have got very good network over here. I have no problem at all. All I right. think in some areas, because when I'm taking 1 o'clock classes, so that time also, then literally I had to do chatting. You can send message, chat message, whatever you don't understand. So I'll answer you that also. Okay? All right. Okay. So धर्मेंद्र जी, जिंक के बारे में समझ में आया? राइट राइट मैडम, समझ आ रहा है बिल्कुल। अच्छा, तो बोरॉन होता है, कैल्शियम और बोरॉन वो क्या हेल्प करता है? मसल्स को हेल्प करता है, बोन्स को हेल्प करता है, टीथ को भी कैल्शियम की जरूरत होती है, एंड इट हेल्प्स इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आल्सो कंट्रोलिंग। देन मैग्नीशियम और सेलेनियम क्या करता है? हार्ट का रेगुलेशन करते हैं। फिर अपना मेटाबॉलिज्म होता है, जो खाया हुआ होता है वो भी मैग्नीशियम कंट्रोल करता है। एंड लेकिन ज्यादा खाएंगे मैग्नीशियम शरीर में जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन होता है, तो इसीलिए तो मैग्नीशियम ज्यादा लेना नहीं चाहिए। एंड इट हेल्प्स इन मसल रिलैक्सेशन आल्सो। तो फिर फॉस्फोरस अपने टीथ के लिए उपयोगी होता है। इट सप्लाइज ऑक्सीजन, अपने भेजा को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो फॉस्फोरस हेल्प्स फॉर सेंडिंग टू द ब्रेन। इट रिड्यूसेस, फॉस्फोरस की कमी होती है तो आदमी को चिंता वगैरह चालू हो जाती है, या नींद नहीं आती है, तो फिर अगर फॉस्फोरस देंगे योग्य मात्रा में, तो उनका नींद भी शांत नींद आ सकती है, एंजाइटी कम हो जाती है। फिर क्लोरीन तो हेयर फॉल के लिए इम्पोर्टेंट है। इफ क्लोरीन की कमी हो जाएगी तो दांत टूटना, एक के बाद एक टूटना चालू हो जाता है। क्लोरीन अपने पेट में गैस्ट्रिक एसिड होता है ना, तो एसिड यानी क्या? HCl यानी क्लोरीन, यानी डाइजेशन के लिए क्लोरीन की इम्पोर्टेंस है। क्रोमियम एंड वैंडेलियम मैंने बोला डायबिटीज को कंट्रोल करता है, क्योंकि क्या है, पैनक्रियास के शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए
क्रोमियम और वैंडेलियम की जरूरत होती है। फिर फ्लोरीन, आपका टूथ एनामल सफेद पना है ना आपका दांतों में, वो फ्लोरीन देता है। तो अगर वो उसकी कमी हो जाएगी तो दांत कमजोर, बोन्स भी कमजोर हो जाते हैं। लिथियम का तो आपको याद है, मैंने बोला हुआ था कि आदमी क्रूएल बनता है, एंग्री बनता है, तो वो डेफिशिएंसी आनी नहीं चाहिए। तो क्योंकि वो सेरोटोनिन हार्मोन होता है, उसकी कमी आ जाती है। आयरन तो मालूम है सबको, एनीमिया हो जाता है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि हमारा खून तो आयरन से ही बन जाता है ना। हीमोग्लोबिन कैसे बनता है? आयरन की वजह से। तो इसीलिए आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, एंड इट इज वो बहुत सारे एंजाइम्स शरीर तैयार करता है, उनके लिए भी वो आयरन की जरूरत पड़ती है। अभी आयोडीन के बारे में हमने बोला कि थायराइड फंक्शन कंट्रोल करता है, तो डेफिशिएंसी होती है तो गॉइटर नाम का बीमारी आती है, जहाँ गले में इतना बड़ा गला हो जाता है ना, ऐसे वाले लोगों का। तो वो लोग आयोडीन के कमी से की वजह से वेट गेन हो जाता है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, तो इट हेल्प्स इन डेफिशिएंसी होती है तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, आदमी को चिड़चिड़ापन वगैरह आ जाता है, कभी कभी पैरालिसिस तक भी जाता है। फिर सेलेनियम होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए, क्योंकि वो डिटॉक्स का काम करता है। तो फिर कैंसर होता है तो कैंसर की सेल्स के साथ फाइटिंग करने के लिए सेलेनियम की बहुत इम्पोर्टेंस है। और हार्ट डिजीजेस भी डेफिशिएंसी आती है तो कमतरता आती है ना शरीर में सेलेनियम की, तो हार्ट डिजीज भी आ सकते हैं। फॉस्फोरस जब भी डेफिशिएंसी होता है, वो मैंने पहले से बोला था, ब्रेन और टीथ के सॉरी बोन्स के लिए भी फॉस्फोरस की जरूरत होती है। तो वो क्या करता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया, फिर अभी दांत की सड़न आती है तो वो पायोरिया तैयार करता है। तो फॉस्फोरस का वो इम्पोर्टेंस है। सिलिकॉन है, वो सल्फर और सिलिकॉन ऐसे है कि अपने नाखून और बाल, ये इनको ब्रिटल बनाते हैं। तो फिर डेफिशिएंसी आएगी तो हमारे बाल झड़ना चालू हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे शैम्पू में वो सल्फर डाला हुआ होता है या सेलेनियम डाला हुआ है। तो फिर वो एक बार हमारे बाल को सल्फर और सेलेनियम मिलना चालू हो जाएगा तो वो झड़ने का बंद हो जाता है। फिर मैंगनीज होता है, वो नर्वस सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है, थायराइड फंक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मसल रिलैक्सेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कॉपर होता है, वो बहुत सारे इन्फेक्शन के साथ फाइट करने के लिए उनकी जरूरत होती है। फिर किडनी फंक्शन के लिए, लंग फंक्शन के लिए कॉपर की जरूरत होती है। ऐसे हर मिनरल का कुछ ना कुछ ऐसा इम्पोर्टेंस है। अभी आपको किसी को पावर डाइट, पावर जूस, सुपर पावर डाइट में कुछ पूछना है क्या? मैं तब तक मैं मीनल मैम को पूछ रही हूँ वो आ रही है या नहीं, या तो मैं आगे लेके जाऊँ। ठीक है, आप मेरे को पूछते रहिए। हाँ डॉक्टर उमेश बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, पूछिए, कुछ पूछना है? नहीं, फिलहाल तो नहीं। ओके। हेलो सुप्रिया मैडम, समरिन। ओके, बोलिए बोलिए समरिन। ये सब डॉक्यूमेंट मिलेगा का कहीं? क्या हुआ? जो आपने ये सब बताए अभी सारे इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स एंड और कौन से फूड में ये मिनरल्स मिलेंगे, ये आपके पास कहीं डॉक्यूमेंट है क्या, ताकि हम रेफर कर सके? तो हेलो, डिस्ट्रीब्यूशन फाइल में आपको मिलेगा उनका उल्लेख, और कौन से फूड में क्या है वो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमारा सीएमडी लेंगे तो सब कुछ उसमें आ जाता है ना।
अच्छा, ओके। तो फिर स्पेशल कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक ड्रॉप लेने का फिर थोड़े थोड़े मिनरल्स का उपयोग होना चालू हो जाता है ना। ओके, ओके। थैंक यू सुप्रिया मैडम। या वेलकम। जी हेलो हेलो इना पूछिए। सुप्रिया मैम, हाँ मुझे एक पूछना था। जैसे कि आपने बताया था पिछली बार कि पावर जूसेस में हम एडेड हनी एंड जैगरी प्लस सेंधा सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ये पूछना था कि डायबिटिक पेशेंट के लिए तो हम जैगरी एंड हनी नहीं यूज़ कर सकते ना, तो नहीं नहीं सिर्फ नहीं, हेलो, वो क्या है मालूम है हमारा ये कुहार का जो हनी मिलता है ना, इट्स जी हनी। तो वो हनी कलकत्ता के मधुबन में बनता है, तो वो ओके अलग तरीके का हनी है। तो ओके उसका कुछ साइड इफेक्ट डायबिटिक पेशेंट को नहीं होता है। ओके, सो दैट वी कैन यूज़ राइट। यस दैट यू कैन इजीली यूज इट। ओके मैम, थैंक यू। ऋचा कुछ पूछना है? No, ma'am. ओके, आई एम जस्ट कॉलिंग हर। तब तक कोई ना कुछ पूछिए, पूछते रहिए। फोन भी नहीं उठा रही है मैडम। पूछिए मैडम पूछिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। तो जो पावर जूस है मैंने कल से उसको शुरू किया है बनाना। वेरी गुड। क्या तकलीफ थी? नहीं, मेरे को कोई तकलीफ ज्यादा नहीं था, सिर्फ लगातार बैठने से थोड़ा डाइजेशन और थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का रहता है, तो अभी शुरू किया है मैंने। कॉन्स्टिपेशन? हेलो, कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ है क्या? हाँ, लाइट। तो पावर जूस विल हेल्प, लाइक जो पत्ता हमने बोला है ना, जो हाँ भी जी। अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें हमने डालने के लिए बोला है ना आपको। तो जो हाँ, राइट। यानी रोज रोज तो लाने की जरूरत नहीं है। आज जो अवेलेबल है इजीली हाथ के नजदीक जो मिलता है किचन में, तो वो डालते रहने का ना। राइट। क्योंकि रोज सेम टेस्ट आएगी तो शायद कंटाला भी आ सकता है ना, ऐसा होता है। लेकिन वो जूस बनाएंगे तो अभी बनाया फिर 2 घंटे के बाद पीऊंगा, तो वैसा करने का नहीं, वो ध्यान में रखिए। इधर बनाया उधर खत्म किया। इसीलिए मैं, आपने पूछा था ना मेरे को कितना डालू वगैरह करके, तो राइट। 10-12 पत्ते लेंगे और अरे अब ये सब कुछ लाया है, इतना सारा लाया है, चलो बनाते हैं, और बाद में रख पिएंगे, ऐसा नहीं करने का। इधर बनाया उधर पीने का, ऐसा। तो दिन में 3 बार भी ले सकता है? हाँ आराम से ले सकते हैं, क्योंकि क्या है, पावर जूस में ऐसा ये है, पावर देता है शरीर को कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें, एंटी एलर्जिक होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी। तो फिर आर्थराइटिस वगैरह का होने का चांस कम हो जाता है। फिर आर्थराइटिस हुआ होगा तो रिकवरी होना चालू हो जाता है ना, तो मैडम पेन वगैरह कम। तो मैडम आपका जो मैंने वो आपको पूछा था ना अभी एक पेशेंट के बारे में, हाँ जी। तो आपके एक्सपीरियंस में है ऐसा पेशेंट पहले कितनी देर में क्योर हुआ वो? नहीं हेलो हेलो, मैं तो सुपर स्पेशलाइजेशन कर चुकी हूँ। मैं तो राइट। ऐसे कॉमन लोगों पर इलाज नहीं करती हूँ। मेरे पास ऑल ओवर इंडिया के पेशेंट्स आते थे। वो एक खून की बीमारी है, तो सब फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब वाले वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। फिर राइट। कलकत्ता के साइड में, वेस्ट बंगाल के साइड में अलग वाली बीमारी है, फिर मध्य प्रदेश में अलग साली है। तो फिर ऐसे पॉकेट्स होते हैं, क्योंकि गुजराती राइट। विल माइग्रेट विथ गुजराती ओनली, पंजाबी पंजाबी के साथ ही, तो फिर डिजीज उधर ही घूमता रहता है ना।
तो ये Right, right. हेरिडिटरी डिजीज। तो मैंने लास्ट मोर देन 30 इयर्स उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया, पब्लिकेशंस लिए, बहुत सारा अवार्ड्स वगैरह मिल गया था। तो यानी मैंने सिर्फ डिजीज पर कंसंट्रेट किया है, खून की बीमारी। तो ऐसे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन वगैरह का मैंने नहीं किया, वो तो मीनल मैडम देखती रहती है। क्योंकि क्या है, मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन किया है ना, यानी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर बाद में और डॉक्टरेट, बहुत सारी मेरे 7-8 डिग्रियां हो चुकी हैं ना। तो फिर Right, right. यानी मुंबई यूनिवर्सिटी में कोई भी डिग्री नहीं बची है, उतनी बार सब कर दी है। Right, right. तो मैडम इसी सेलिक डिजीज जो है उसमें आपका एक्सपीरियंस है? कौन सा डिजीज? सेलिक डिजीज, वीट एलर्जी हाँ? में। मैं समझी नहीं, कौन सा वाला डिजीज? मैडम मैं बोला सेलिक डिजीज जो है वीट एलर्जी हो जाती है। हेलो हेलो, आवाज जरा फट रहा है, जरा मैसेज में डालोगे, चैट में डालोगे? कौन सा डिजीज समझ में आया? 3-4 बार पूछा ना मैंने, वो सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज फट रहा है। शुभम, वीट एलर्जी किसको है? लिखिए लिखिए चैट में, पता है मैं, आप बोल नहीं सकते हैं, आवाज सुनाई नहीं दे रहा है आपका। धर्मेंद्र जी कहाँ घूम गए? आप डिजीज का नाम बोलने वाले थे ना। हेलो। मैडम मैंने पूछा था क्वेश्चन ये हाँ, वीट एलर्जी का। अच्छा एलर्जी का आपने पूछा था क्या? हाँ 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 जी, हाँ हाँ, जी, राइट। क्योंकि आप एस वाला कुछ पूछ रहे थे ना, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, एलर्जी होगी तो एलर्जी किस वजह से, क्या खाने से आती है? भैया, वीट अगर पता नहीं चलेगा तो फिर आप डिटॉक्स वाला, हमारे पास डिटॉक्स का टैबलेट्स होते हैं, वो वाले टैबलेट्स, फिर एनिमा देने का, तो फिर एलर्जी चली जाती है। लेकिन वो खाना आप ध्यान में रखिए, कोशिश करो कि क्या खाने की वजह से एलर्जी आई है। क्योंकि क्या है, हमारे इंडिया में एलर्जी का, हमारा शरीर बहुत तंदुरुस्त होता है इंडियन लोगों का, लेकिन अमेरिका वाले बहुत ही नाजुक होते हैं, उनका शरीर में ये खाने से एलर्जी, वो खाने से, तो फिर उनको ध्यान में रखना पड़ता है। हमारे इंडियंस में वेरी फ्यू पीपल आर हैविंग एलर्जी टू समथिंग, ऐसा है। क्योंकि वो एलर्जी ब्लड ग्रुप के हिसाब से आती होगी, उल्टा पुल्टा खाने की वजह से। हाँ राइट मैडम, अभी बच्चों में पंजाब में बहुत आ रहा है वीट एलर्जी। वीट एलर्जी हो गई है, तो फिर उनको फिर बाजरे की रोटी बना के, नाचनी की, मकई की ले सकते हैं आप। राइट राइट। तो सब्स्टिट्यूट हमारे इंडिया में तो बहुत सारे हैं ना, ज्वार है, बाजरा है, नाचनी है, मक्का है, तो या तो आप मिक्सचर कर सकते हैं। ये एलर्जी अभी आना चालू हो गया है क्या? नहीं, ये एक्चुअली 16 साल का है बच्चा जिसको है, 15-16 साल। लेकिन वीट खाने की वजह से एलर्जी आती है? हाँ वो जो डायग्नोज है उसमें सिलिक डिजीज है ना। ओके ओके। हेलो। हाँ जी, बोलिए सिमरन। हाँ समरीन, मैं धर्मेंद्र जी से पूछना चाहती हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वीट एलर्जी के?
वीट, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी जी, हाँ हाँ जी। बोलिए। हाँ, वीट एलर्जी होती है जब कोई भी आप वीट का प्रोडक्ट खाते हैं तो उसमें मेनली उसमें जो प्रोटीन होता है ना, ग्लूटेन जी। एक सब्सटेंस है, तो ग्लूटेन ही एक्चुअली वो डाइजेस्ट नहीं करती है बॉडी, वो शायद प्रोटीन का एक टाइप है। तो उसमें वो जब लेते हैं तो एक तो पेट कभी कॉन्स्टिपेशन में चला जाएगा, कभी वो ज्यादा लूज हो जाएगा बच्चे का, तो वेट जो है वो नहीं बढ़ेगा बच्चे का, और ज्यादा चिड़चिड़ापन रहेगा, वो हल्का माइल्ड फीवर भी आता है बच्चे को, लगातार रहता है इससे। तो जैसे उसके खाने से हम उसको ग्लूटेन फ्री डाइट देना शुरू करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको वो कवर होना शुरू होता है। तो अगर उसको इधर हमारा पंजाब में काफी अभी बच्चों को ज्यादा आ रहा है। तो आप ओके। CMP देना चालू कीजिए, या तो कोई मिनरल की कमी होने की वजह से वो होता होगा, तो देखिए, या तो फिर जवार बाजरा देना चालू करना पड़ेगा। हाँ मैडम, वो तो दूसरी डाइट पे तो जाएंगे ही, जैसे अभी ब्लड ग्रुप डाइट है तो उसमें तो वो जाएंगे उधर। लेकिन जो इसका अभी अपने कुहार थेरेपी में मैंने पूछा कि इसमें उसके बारे में कुछ अपने आपके पास जो एक्सपीरियंस में पेशेंट जो है उन्होंने किसी ने इसके ऊपर काम किया हो, इसलिए मैंने पूछा ये। अच्छा अच्छा, लेकिन आपको पता चला ना क्या हमने बोला है? मैं समझ गया। हम्म। तो होता क्या है कि जो ट्रेडिशनल डाइट रहता है ना, तो सभी जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है उसको हम ट्रीटमेंट दें और उसके बाद वो अपना दोबारा से गेहूं खाना शुरू कर दे, वीट के प्रोडक्ट। तो अगर नहीं खाता है तो वो समझते हैं इसको ये मतलब वो इसको बड़ा बीमारी मानते हैं हमारे इधर, समझ रहे हैं ना? अच्छा, हाँ हाँ तो हाँ जैसे हाँ। जैसे जैसे लड़की है तो लड़के का शादी में मुश्किल आएगा, उसको इतना अवेयर नहीं होते हैं लोग, तो वो भी उनके पेरेंट्स अपनी मुश्किल मानते हैं कि हम बच्चे का शादी कैसे करेंगे अगर उसको यही अच्छा, प्रॉब्लम है। हाँ 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 हाँ। तो मेरे पास काफी ऐसे हैं मेरे जो प्रैक्टिस में पेशेंट। तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आयुर्वेद में तो लीवर को ही माना जाता है कि उधर से ही आता है, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं रहती है काफी चीजें। हमने काफी चीजें ट्राई की है, तो मतलब यही है कि आप अगर ग्लूटेन फ्री देते हैं तो ठीक रहता है। तो हाँ जी। मे भी आप मेरे समझ गए होंगे बात करने का। नहीं, सब जी समझ रहा है, हमें सबको समझ रहा है, आप बोलिए बोलिए। हाँ, तो मेनली मैंने इसलिए आपके सामने रखा कि कुहार थेरेपी में इसके लिए हम कुछ ढूंढेंगे कि जिसको मिला के तो हम क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा पिछले 15 साल से काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक जैसे थायराइड, आर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज हो गया कि इंडिया हब बनता जा रहा है। तो ये भी मैंने देखा है हमारे एरिया में, पंजाब में, और पंजाब और हरियाणा में भी है क्योंकि वहाँ भी मेन फूड जो गेहूं ही है। हम्म। हाँ, तो इसलिए हम आप भी और इसके ऊपर भी थोड़ा होगा तो बढ़िया रहेगा, इसलिए मैंने पूछा ये। नहीं, बढ़िया बात है, क्योंकि क्या है मालूम है, अलग अलग तरीके के प्रश्न विचार पूछेंगे ना, कोई भी अलग डिजीज का, तो फिर दूसरों को भी नॉलेज होता है किस तरीके से देने का ना। राइट हाँ, राइट। शुभम पूछिए पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा, ठीक ठीक है, वो बोल नहीं सकते। अच्छा मैडम, एक एक और बताइए, जैसे कुछ लड़कियां होती हैं, लेडीज, तो उनको अ, मिट्टी खाने का आदत होता है क्या? जैसे। हाँ, वो क्या है हाँ, मालूम है, कैल्शियम की कमी होती है ना, बच्चे लोग, बच्चे है ना, छोटी है ना बच्ची। नहीं बच्चे भी खाते हैं। मेरे 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 प्रैक्टिस में जो 30 35 22 20 इस साल के, मतलब मेरे पास बड़ी उम्र में 35 तक है जो जिन्होंने मेरे मिट्टी पास खा संपर्क किया है। हेलो, जैसे हेलो। इतने बड़े लोग भी मिट्टी खाते हैं? हाँ, मेरे पास जहाँ मैं काम करता हूँ प्रैक्टिस, तो वहाँ मेरे पास DSF कैंपस है, तो वहाँ पूरे ऑल इंडिया से अपने जो 1000 लोग
कम से कम 200-300 फैमिली रहता है, तो पूरे अलग अलग स्टेट से रहता है। तो मेरे पास उत्तराखंड से मेरे पास एक लेडीज है, पिछले 3 साल से, जो हाँ उन्होंने जी। एलोपैथी में बहुत ट्रीटमेंट कर लिया है, कैल्शियम खा लिया है, ये वो खा लिया है, लेकिन उनका वो मिट्टी ये नहीं खाते हैं कि जहां से पकड़ा वहां से खा लिया। जो जैसे होता है ना, आप क्या बोलेंगे उसको, चूल्हा बोलते हैं जिसपे खाना हाँ पकाते हैं, हाँ मिट्टी का बनाते हैं ना, देहात में, हाँ गाँव में, हाँ जिसपे ऊपर खाना बनाते हैं, तो हाँ मिट्टी का बना लेते हैं वो। तो हाँ। जहाँ जैसे एक तंदूर होता है, बराबर है। तंदूर समझ रहे हैं, तंदूर में बनाते हैं ना, जो रेस्टोरेंट में खाना भी बनाते हैं बोलिए तो बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो उसका मिट्टी पक जाता है ना वो, फिर हाँ वो खाते हैं वो। तो उसमें उसमें क्या इसमें देने का है? पहले तो उनको सीएमडी दे के शांत करो, ठीक राइट, है। राइट, फिर अगर कैल्शियम की टैबलेट्स देते हैं तो भी खा रहे हैं, तो फिर उनको धूप में बिठा दो, सुबह सुबह वाली 7 साढ़े 7 वाली, आधा घंटा जो उनको या तो खेलने के लिए या कुछ किस तरीके से, यानी उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, तो फिर सनलाइट लेंगे तो डेफिशिएंसी चली जाएगी। राइट। इस तरीके से कोशिश करो अभी। आप 1-2 दिन में कोशिश करो, लास्ट दिन अभी तो हार्डली ये कोर्स होने को ये खत्म होने को हार्डली थोड़े दिन बच गए हैं ना, तो अगर हो सके तो हमें बोल देने का कि धूप में बिठाया और वो उनका मिट्टी खाना कम हो गया वगैरह, या तो ग्रुप तो हम बंद नहीं करने वाले, आप कभी भी डाल सकेंगे तो पता चलेगा कि सनलाइट की वजह से उनकी बीमारी चली गई। नहीं तो अगर तभी भी नहीं जाती है ना, तो विटामिन डी का यानी ज्यादा यूनिट वाला गोली आती है, मोस्टली में देती नहीं है, लेकिन ये तो एकदम खतरनाक, इतने सारे बच्चों को 26-27 किलो खा रहे हैं, तो विटामिन डेफिशिएंसी होगी कैल्शियम की या तो विटामिन डी की, तो इसीलिए आप कैल्शियम देके भी नहीं जा रही है। विटामिन डी के बारे में वो कैप्सूल देने का, एक ही कैप्सूल, और वो एक 4 गोली का 100 रुपीज का मिलता है, तो वो देने का होता है, तो देखिए फिर बाद में दूसरे बारे में सोचेंगे, तब तक तो वो आप ये दीजिए, सीएमडी दे सकते हैं ना। राइट। यानी इतने सारे पेशेंट को आप सीएमडी देंगे तो आपकी कमाई भी बहुत हो गई। एक्चुअली मैडम, जो फंगल इन्फेक्शन है उसमें इसमें कुहार में क्या चलता है? एक तो अल्कलाइन वाटर हो गया। नहीं, वो तो अलग सी बात है, एसिडिक वाटर देंगे, अल्कलाइन नहीं देने का। फंगल इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया फंगाई वगैरह एसिड से मर जाते हैं, अल्कली में नहीं मरते हैं। अल्कली में होता है, तो फिर वो गो आयनिक का चौथा वाला नल पाइप से आता है ना पानी, वो एसिडिक पानी आता है, तो उसके लिए स्किन का सोराइसिस वगैरह क्या ये उपाय कर सकते हैं। फिर ये फंगल इन्फेक्शन के लिए उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, यानी उसके लिए आप एक तो कहाँ पे है फंगल इन्फेक्शन? मैडम, ये भी मेरे पास बहुत अभी 2-3 साल से पेशेंट बहुत पड़ रहे हैं, जिनको नहीं, अपना वो सब पूरे बॉडी पे, सब पूरे एक तो रहता है अंडर गारमेंट्स में, और ये सीएमडी, हेलो, ये सीएमडी है ना, वो रामबाण है, जो कुछ तो आपको नहीं देने के लिए आता है ना, तो भी सीएमडी देने का, तो सीएमडी आधा काम तो करता है, रिकवरी हो जाएगी। और ऊपर से फिर एंटी फंगल कैंडिड वगैरह की ये होते हैं ना ट्यूब, तो फिर लगा सकते हैं ना। राइट। अभी एलोपैथिक बोलना नहीं चाहिए था, सॉरी, लेकिन क्या करे, अभी मुंह से आ गया अचानक। पता नहीं है, सर भी नहीं बोल रहे हैं, मीनल भी मैडम बोल नहीं रही है, क्या हुआ, क्या इमरजेंसी आ गई है? मैंने सर को भी पूछा है। नहीं, एक बार मेरे से बात हुआ था, मेरे ख्याल में मिलन में जब स्टार्ट किया था। आज किया था?
हाँ, एक बार विश हुआ मेरा उनसे जब स्टार्ट मैंने किया 10:37 पे। नहीं 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 नहीं, आज आई नहीं है वो, बिल्कुल नहीं आई है। मैंने सत्यम, अभी सत्यम जी, हेलो सत्यम। उनको सबको मैसेज ही देना पड़ रहा है, क्या बात है? आपका, तो मैडम आप हेलो, आगे अब मैंने अपना केस दिया, देख लो। बोलिए बोलिए, आप क्यों रुक गए? धर्मेंद्र जी बोलिए। हाँ हाँ मैडम, एक्चुअली एक्चुअली आपने एक्सपीरियंस किया है सीएमडी को? चालू करना है, वो बंद की वजह से चालू नहीं कर पाई। अच्छा 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 अच्छा। तो जी, सबको मोनो डाइट वगैरह सब कुछ समझ में आया? फ्रूट, कोई भी एक फ्रूट लेने का, जूस पीने का, उसमें 4 ड्रॉप सीएमडी डालने का और पीने का, एंड भी पूरे दिन में वो ही पीने का ना। तो फिर जब भी प्यास लगेगी तो बीच बीच में पानी डालने का, पानी पीने पीने का, तो उसमें भी सीएमडी डालने का। ये बहुत अच्छा तरीका है। 15 दिन, ये 7 दिन तक कंटिन्यू करने का। बाद में अपना पावर डाइट 80-20 वाला, समझ में आया ना मोनो डाइट कैसे करने का? राइट, उसमें मैडम 4 किस्म का फ्रूट चाहिए सुबह मॉर्निंग में, और नहीं टाइप्स नहीं ऑफ? नहीं, मोनो का मीनिंग क्या है? एक, तो सिर्फ एक तरह का। राइट, डेली एक चेंज करके लेंगे? चलेगा। आज ये ये क्या बोलते हो पपाया हो गया, हिंदी? नेक्स्ट डे मैंगो हो गया, नेक्स्ट डे कुछ पीस हो गया, कुछ बनाना हो गया, ऐसा ऐसा मैंगो, चेंज करके लेंगे। हेलो हेलो, मैंगो का जूस पियेंगे तो बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। मैंगो नहीं मिल सकता है। देखिए, जो हजम हो सकता है ना वैसा करने का। ठीक नहीं है, अभी मैडम, हम फूड सप्लाई, हेलो, हम आवाज आवाज बहुत food- मैडम आज कट रहा है, आवाज बहुत कट रहा है, पता नहीं क्या बात मेरे पास तो बहुत स्ट्रांग ये है, पता है। नहीं अभी है अभी मैं। अभी 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 ठीक है बस। ओके, तो हाँ आपको मैडम, मालूम है, हेलो, राइट राइट करिए, कंटिन्यू करिए आप। हाँ ठीक है ठीक है। तो हमारे फूड में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो फिर वो सब कुछ हमारे खाने में से हमें मिलता है। लेकिन खाने का डिपेंड्स किसके ऊपर होता है? अपना वजन कितना है, हाइट कितनी है, आप क्या किस तरीके के काम करते हैं, इसके ऊपर अवलंबन होता है। तो अभी हम सप्लीमेंट्स के लिए जाते हैं। पहला सप्लीमेंट क्या है? सीएमडी, जिसके बारे में पहले दिन से अभी तक में हम लोग कुछ ना कुछ सीएमडी के बारे में बोलते आए। सीएमडी यानी क्या? कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप। इट इज गिवन टू एवरीवन। कुछ भी बीमार होगा तो उसको ज्यादा मात्रा में दिया जाता है, हेल्दी होगा तो उसको थोड़ा थोड़ा सा भी चल जाता है। फिर इट्स हनी, ये क्या है? आपका हनी शहद किस लिए उपयोगी पड़ता है? डाइजेशन प्रॉब्लम होगा तो उसको हेल्प करता है, ब्रेन के फंक्शन को हेल्प करता है। तो फिर उसका बहुत सारा फायदा है। इट्स प्रोटीन नाम दवाई सप्लीमेंट है। वो वेट गेन या ये शरीर में वजन बढ़ाने का, बहुत सारे लोग स्लिम होते हैं, उनका कुछ भी खाएंगे तो बढ़ता नहीं है, तो वो देने का। या किसी को बहुत सारी बीमारी है, हम सिर्फ जूस पर, पावर जूस पर ही रख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जाना चाहिए ना प्रोटीन, तो उनको दे सकते हैं। किसको, कुछ लोगों को बहुत सारा स्ट्रेस होता है। आजकल का जीवन तो इतना ये है धकाधकी का, कि हर बार हर समय छोटे बच्चों को भी बहुत सारा टेंशन आता है। तो ये इट्स प्रोटीन है, वो ब्रेन को बूस्ट करता है, वो ताकत देता है ब्रेन को। तो हमारे शरीर में
वो जो टेंशन मेंशन आता है वो कम करने के लिए मदद करता है। वो इट्स प्रोटीन 2 तरह का है। फीमेल के लिए हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल में, तो उसके लिए बहुत सारा उपयोगी पड़ता है। फिर इट्स फाइबर नाम का सप्लीमेंट है, वो डायबिटीज के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, एसिडिटी होती है लोगों को, उसके लिए उपयोगी होता है। फिर कैलमैक डी यानी सीएम बोला जाता है, वो उसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन डी होता है। तो इनकी सबकी डेफिशिएंसी होती है तो आदमी के बोन्स ब्रिटल हो जाते हैं ना, स्किन में, स्किन, हार्ट, ब्रेन, सबके हेल्थ के लिए उपयोगी पड़ता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए भी उपयोगी होता है, इंसुलिन के बनाने के लिए उपयोगी होता है, कैल्शियम रिप्रोडक्शन के लिए भी उपयोगी होता है। इसलिए ये कैलमैक डी देने से बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं। ये 3 बार लेना पड़ता है क्योंकि उसका बहुत कम मात्रा में कैल्शियम है। फिर फ्लैक्सीड ऑयल, वो फ्लैक्सीड ऑयल में क्या होता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, इन 3 तरह के ऑयल होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करता है। तो हार्मोनल लेवल भी हमारा चेंज होता है, तो उसको भी वो कंट्रोल करता है। तो इसीलिए फ्लैक्सीड ऑयल की सप्लीमेंट्स भी लेना जरूरी है। बोन एंड जॉइंट का ये सप्लीमेंट हमारे बोन्स को रिपेयर करता है, टिश्यू को रिपेयर करता है। जैसे हम एजेड हो जाते हैं ना, उम्र बढ़ जाती है, तो हमारे बोन्स जरा कमजोरता महसूस करते हैं, तो फिर बोन्स एंड जॉइंट वाला देंगे तो हमारे बोन्स टूटेंगे नहीं, यानी फ्रैक्चर विक्चर होना। कुछ पूछना चाहते हैं? तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम कवर कर सकते हैं, यानी उनको देने से जरा पेन होना कम हो जाएगा। फिर डिटॉक्स नाम का सप्लीमेंट है, तो जब भी एसिडिटी होती है, कभी कभी ढकार देते हैं लोग, या पेट में बहुत सारा गैस हो जाता है, तो उनके लिए खाने की इच्छा नहीं होती है, तो फिर उसके लिए डिटॉक्स का देना जरूरी होता है। डिटॉक्स तो किडनी के पेशेंट को भी देना चाहिए, बहुत सारे फायदे हैं। फिर बायोस्प्रिंगा, उसमें मोरिंगा होता है, तो इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, फिर वेट लॉस के लिए हेल्पफुल है, एंड ब्रेन के लिए ताकत भी बढ़ाता है। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ मैडम, डॉक्टर उमेश बोल रहा हूँ। हाँ, वो हाई फाइबर जो है उसके हाँ। वो क्या है, कंटेंट क्या क्या है हाई फाइबर जो आपने बताया अभी? वो हमने वो ये दिया है, आपको फाइल भेजी है, उसमें हाँ सब कुछ दिया है। अगर आपने सब कुछ पढ़ा नहीं है क्या, हम जो भेज रहे हैं रोज का? हाँ हाँ हाँ, पढ़ता हूँ। जरा मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर बाद में उधर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। क्योंकि कंटेंट्स बोलते रहेंगे तो 10-12 थिंग्स होते हैं ना, तो फिर हाँ हाँ। हर एक का बोलते जाए तो 1 घंटा काफी नहीं होगा ना, क्योंकि हमको तो हम्म, सब सप्लीमेंट्स के बारे में बोलना है ना, इसीलिए। ठीक हाँ है। जी, फिर बोलिए डॉक्टर धर्मेंद्र। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग मैडम, मॉर्निंग। What गुड मॉर्निंग। was your question? Good morning. What was your question, Dharmender? नहीं, मेरा मेरा नहीं, था। डॉक्टर उनका क्वेश्चन है। ये हाई फाइबर के मतलब कंटेंट क्या है, आयुर्वेदिक है कि क्या है इसमें? आयुर्वेदिक। We are यहाँ into purely जो हमारे जो medicinal effects है, you know, even it's अगर मैं It's Pro का भी जो कंटेंट बोलूंगी ना, the ingredients, it's soya protein, milk whey protein, pea protein, oats, beets. So it is contained to the Ayurveda only. ओके, Yeah, ठीक है, थैंक यू। thanks. And it is there in the product brochures. आपको मैंने Okay. ग्रुप में प्रोडक्ट ब्रोशर सबको शेयर किया है. All the content what is there, it is mentioned very clear cut. Yeah. Any questions to anybody on this? अभी डॉक्टर सुप्रिया आपने कहाँ तक लिया है? मैं थोड़ा 4-5 ही प्रोडक्ट्स रह गए हैं, जरा बोल देती हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट्स चालू कर दिए है ना? ये सप्लीमेंट वाला। अच्छा, कौन सा सप्लीमेंट आपने लिया है?
It's protein, it's honey, फिर Calmac, flaxseed oil, bones and joint detox, Biospringa. Let me take it up myself now ahead, okay? Just let me take it up. Yeah. Yeah. Tell me any आपको समझा Calmac D के components क्या है? Any questions over there? Yeah. What is Calmac D? कोई anybody can tell me what it has? Yeah, tell me. भूमिका बोलिए. धर्मेंद्र भूमिका. हाँ जी बोलिए. Zeal. Lina. Hello. Yeah. Tell me, Dharmendra, what is the ingredient? Oh, this Calmac D. What it says? You called out my name? हेलो, किसके बनाया वो नहीं बोल रहे हैं. हमने बोला था ना उसमें क्या क्या मिलता है हमें. Some calcium, Calmac D में vitamin D, क्या-क्या? magnesium, zinc, and manganese. No. Calcium, magnesium and vitamin D हमने. Yes. That- Sorry. दो गलती से नहीं. Yes. So what you get in Calmac D is you get calcium, you get magnesium, you get vitamin D. See, calcium आप natural जो food content खाते हो, आपको calcium तो वहां से मिल भी जाती है. Okay, but जहाँ पे absorption आता है, जो calcium खुद को absorb नहीं कर सकती है, तो उसके लिए जो supportive लगता है vitamin D का. So that is where we have included calcium, magnesium and vitamin D. काफी सारी चीजों में आपको मैग्नीशियम नहीं मिलता है एज अ प्रॉपर प्रपोर्शन फॉर डाइजेस्टिंग इट. अदरवाइज समझो कोई आपको बोलता है मैं कैल्शियम का तो फूड खाता हूँ, मुझे कैलमैक नहीं चाहिए, तो व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन वी गिव देम? इफ इन केस ही वांट्स टू बी एज पर द फिटनेस पिलर, then we ask him to take sun bath regularly without skipping every day. Why sun bath? Because sun bath releases the hormones of your body. क्या करता है, जो आपने कैल्शियम खाया है उसको ऑब्जॉर्व करता है विटामिन डी. So sun bath becomes compulsory for each and every patient as per the fitness pillars, though he takes supplement or he doesn't take supplements, but he has to be given that. Is it clear? Is it clear? और जो Calmac D में है, there are 12 आयुर्वेदिक herb जो हम बोलते हैं, it has got 12 आयुर्वेदिक herb. तो वो 12 आयुर्वेदिक herb हमें कैसे हेल्प करता है? It is not just a Calmac D, you know, it is supported by the Ayurvedas. Any questions over here? Any questions over here? तो मैडम Because इसका यार जो- बोलिए धर्मेंद्र जी. हाँ जी. हाँ जी मैडम, जो टैबलेट है वो एक टैबलेट जो है वो कितना 500 mg का रहता है? See, जो हम यहाँ पे जो टैबलेट है ना, हमारी जो टैबलेट्स है, it is like a child dosage. Okay, तो we Right. don't give one. We ask the patient to take at least minimum 2. Because the dosage itself is like a child, ना? अरे स्वामी भैया कैसे हो? हाँ. उनका 3 लीटर दे दो. तो फिर उसके हिसाब से जो कैलमैक डी का जो है, बिकॉज दी डोसेज इटसेल्फ इज लाइक अ चाइल्ड, तो आप क्या करोगे, एक तो नहीं दे पाओगे ना, ताकि उसको इजीली ऑब्जॉर्व करता है. अगर आप कैलमैक डी को पानी में भी डालोगे ना, तो इट ऑब्जॉर्ब्स वेरी फास्ट. ओके, इज योर डॉक्टर धर्मेंद्र, आपका जवाब आपको मिल गया है? राइट मैडम. तो इसका मैक्सिमम तो इसके लिए मैक्सिमम पर डे कितना इसको दिख सकता है? सी मैक्सिमम पर डे डिपेंडिंग. अभी क्रिटिकल पेशेंट है तो हम 8 भी बोलते हैं. वी टेल देम 8 आल्सो, दैट इज 2 2 2. राइट.
So it is not starting with one supplement, it starts with 2 at least. Right. जहाँ पे critical जाता है, we even say 3 because the dosage is of like a baby dosage. Okay. अगर आप Calmac D को पानी में डालोगे ना, within minutes it gets dissolved. तो मैडम आप थोड़ा सा CMD से बाद में स्टार्ट किया है हनी से, थोड़ा उस पे ऊपर जाएंगे, थोड़ा उसके बाद फिर प्रोटीन ऐसा थोड़ा अच्छा अभी मैं आपको बताती हूँ जो CMD है, जो कहते हैं इट इज कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स. ओके, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स आता है जो नॉर्मली आपको कहाँ से नहीं है, यू गेट इट ओनली फ्रॉम द रॉ फूड और आइदर फ्रॉम द वाटर, जो हमारा 75% कंपोनेंट वाटर होता है, राइट. जहाँ पे आपका पानी एसिडिक है तो वो अल्कलाइन कैसे होगा? तो जब भी आप CMD ड्रॉप्स डालते हो, जैसे आपने मटके का पानी पी लिया, राइट, आपके वहां का मगर पानी बहुत हार्ड है तो उसकी एसिडिटी फिर भी रहेगी. मतलब जो आपने अल्कलाइन पानी मटके का किया है, कहीं ना कहीं वो जाके क्या होगा, इट विल बी 6.5 या समवेयर सिमिलर टू 6.5 to 7. ओके, तो उसको हमको 100% अल्कलाइन करने के लिए वी आस्क द पर्सन टू टेक CMD ड्रॉप्स. CMD ड्रॉप्स क्या करेगा, अगर समझो वो फ्रूट खाता है ना, तो उसमें भी वो CMD ड्रॉप्स डाल के पिएगा. Even if he takes medicines also, now we ask him to put in the CMD in the water in that also, so that it gets absorbed into his cell. Whenever he takes that water, it gets into the absorption of the cells. And CMD is from the Uttan Lake, where it gets processed, which was getting it processed for 20 years. It's a very long duration for the process. And you will not get everywhere. Online पे भी आपको दिखेगी CMD, but we don't know what it is because we only go via through our people. We will not go through anybody else. जैसे आप हो, आपको अगर CMD लेनी है, आपकी ID क्रिएट की गई है, then only you can order. But समझो किसी और को चाहिए, तो he can only take it through you. Or if in case he knows somebody, he can take it from him. तो मैडम इसको जैसे कोई पेशेंट है, वो कोई पेशेंट है उसकी मेडिसिन में ऑलरेडी प्रिस्क्राइब किया हुआ है कोई मिनरल्स कॉम्बिनेशन टैबलेट्स में, उसके साथ फिर that is okay. See that is okay, क्योंकि हर एक टैबलेट्स अगर समझो वो होम्योपैथी भी लेता है ना, देखो होम्योपैथी anyway a component of mineral, it's a component of natural only, right? नहीं, in case of allopathy में नहीं, you can, there is no harm. Okay. There's nothing harmful, it is rather very good. You can see, जब भी आपके पास धर्मेंद्र पेशेंट आता है ना, समझो आप ही मेरे पेशेंट हो, ओके, तो मैं आपकी पहले वाली मेडिसिन स्टॉप नहीं करूंगी, मैं आपको फिजट नहीं करूंगी, ओके, मैं आपको मगर स्पेसिफिक ड्यूरेशन बोलूंगी कि अभी आप अपना डोसेज कम कर लो, और वो भी आफ्टर रेगुलर चेक. समझो आपकी बीपी की चल रही है फॉर एन एग्जांपल, ओके, तो मैं बीपी आपको रेगुलर चेक मेडिसिन छोड़ने के बाद भी आपको बोलूंगी आप हर रोज चेक करो एटलीस्ट 15 दिन के लिए. उसके बाद भी मैं आपको बोलूंगी आप एवरीडे नहीं ऑल्टरनेट डे चेक करो, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि अभी भी जैसे मेरी मम्मी का है फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको लाइव केस डिस्कस किया, राइट. मम्मी को अभी बीपी की दवाई छोड़ के 15 दिन हो चुके हैं और बीपी इज नॉर्मल 120/70 और 80. तो उसमें आपने क्या दिया मैडम? मम्मी की तो शी हैड मल्टीपल सिस्ट है ना, वो मैं डिस्कस केस करूंगी आप लोगों के साथ, फुल डिस्कस करूंगी कि हाउ वी ट्रीटेड, व्हाट वी ट्रीटेड, या because today what I've just entered half the session, so just I wanted to understand where Dr. Supriya has taken, what is she taking, so that accordingly then I can guide you all for that session. Okay, then अभी क्या है, आपको फिटनेस सप्लीमेंट्स मालूम पड़ गई है, अभी मैं आपको पूरा बता रही हूँ सप्लीमेंट्स के बारे में. सप्लीमेंट्स अगर आपको समझ पे आएगा then only I can take a live case and I can share with you all the entire details ना.
Right. so that Right. you can connect each parameter. How we do, why do we do, what is the reason behind. So जो हम concentrated mineral drops इसके लिए बोलते हैं ताकि चाहे वो food भी खावे वो in the form of a mineral जो उसके body की need, और अगर वो concentrated mineral drops भी हम उसको के देते हैं fruits में या सलाद में, वो क्या करते हैं, वो absorption easy करते हैं. When the absorption becomes faster, so why will patient not recover faster for you? So it becomes easier for him, na? Right? Is this clear? समझ पे आया है? Yes, from my side. Yes. उसके बाद मैम ने लिया it's honey. It's honey जो मैम ने बोला रहेगा, it is from the Madhuban. It is specific type of honey bee which is being taken so that it treats the patient completely and cures the patient. देखो हनी तो आपको बहुत तरीके से आपको ब्रांड में मार्केट में मिलेगी, ओके. जब भी आप उसको धूप में रखोगे आप देखोगे ना उनकी जो हनी की जो होगी ना, आपको ऊपर हनी दिखेगी, नीचे कहीं ना कहीं डाइल्यूशन ऑफ आपको शुगर्स दिखेंगे ही दिखेंगे. अब ये भी हनी रख देना, वो भी हनी रख देना, ये आप चेक कर लेना तो आप अंदाजा आ जाएगा कि व्हाई वी आर सेइंग यू दैट. किसी को बोलता है मेरे को हनी नहीं लेनी है, जैसे फॉर एन एग्जांपल माय मॉम शी सेड आई डोंट वांट हनी, आई विल टेक गुड़, सो वी आर गिविंग गुड़, इट इज ओके. बिकॉज जैगरी की खुद की इम्पोर्टेंस है, की खुद की अपनी इम्पोर्टेंस है. जैगरी जहाँ पे आता है, जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था, तो जैगरी आपको क्या करता है, आपका एसिड का काम करता है, आपका आयरन का काम करता है, आपको फूड डाइजेशन जहाँ पे बेटर देता है. एंड हाउ यू कैन कंज्यूम जैगरी, that was my only purpose of sharing that video for you all to know how it is to be taken, in which manner it is to be taken. There's nothing else the reason for we sharing you something. नहीं तो जैगरी के तो वीडियोस बहुत जगह ऑनलाइन पड़े हुए हैं, तो हम स्पेसिफिक खाली वीडियोस क्यों शेयर करते हैं, बिकॉज इट हैज वैल्यू इन इट. मैंने आपको सनबाथ का वीडियो शेयर किया ताकि आप लोगों को समझेगा कि सनबाथ की इम्पोर्टेंस क्या है. हॉर्मोन्स जो हमारे बॉडी से रिलीज होने चाहिए, जो अर्ली मॉर्निंग रेस या लेट इवनिंग रेस, डिपेंडिंग आपका क्लाइमेट के ऊपर, सो वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिक हील करता है. यस, तो सनबाथ अपने तरीके से अपना रोल इम्पोर्टेंट करता है. तो वैसे ही हमारी इच्छा नहीं है. तो यार ऑल्सो वी डोंट आस्क पेशेंट कि आप इच्छा नहीं लो क्योंकि हमारी मधुबन की हनी है, हमारी कोलकाता की मधुबन की हनी है. वी डोंट फोर्स, लेट हिम डिसाइड, लेट हिम टेक अ कॉल. अगर वो पेशेंट लेता है, यू कैन टेल हिम कि ये भी हमारे पास अवेलेबल है, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस. क्योंकि एक बार आप उसको टेस्ट करवाओगे, ही विल नेवर लुक आउट फॉर डिफरेंट हनी. That is quite sure, because it will keep him healthy. Then she took, I think, madam आपने बायोस्प्रिंगा लिया है? आपका मैंने लिया है, लेकिन आप जरा वापस ले लो. हाँ जी, हाँ जी. Yeah. So now comes to बायोस्प्रिंगा. नहीं मैडम, बायोस्प्रिंगा, हाँ जी, बोलिए बोलिए. मैडम आप चार्ट के हिसाब से चलिए, मेरे पास चार्ट है सामने, तो उसमें नेक्स्ट प्रोटीन है, मेंस प्रोटीन, फिर ह्यूमन प्रोटीन, ऐसे आप उसको लेंगे तो बढ़िया रहेगा शायद. नहीं, see, listen, Dharma, we take some main which is more good for your patient. Okay. ताकि क्या होगा, आपको मालूम पड़ेगा कि अगर मेरे पेशेंट को ये डिजीज है तो एटलीस्ट ये जो कंपोनेंट जैसे डी है, ओके,
फॉर एन एग्जाम्पल बायोस्प्रिंगा है, रिवो केयर है, किडनी केयर है, फ्लेक्सीड ऑयल है. This is a combination where you have a multiple disease patient. Okay, protein, we know how it supports, we know how fiber supports, okay, or how honey will support, but how biospringa will support you will not know, na? Okay. Let me be very open. Yes or no? सही है मैडम, बिल्कुल कोई मेरे को हाँ ना बोलेगा. हाँ, तो इसके लिए सही बोल रहे हैं। जो हाँ, yes, सप्लीमेंट्स yes. उसके जो मेन, यस, उसकी जो मेन इम्पोर्टेंस होता, अगर वो आपको क्लियर है ना, तो आप कोई भी अपने पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो. तो फिर आपको मालूम है कि मेरे को ये पेशेंट है तो मैं इसको कॉम्बिनेशन में दवाइयाँ सप्लीमेंट्स क्या दे सकता हूँ. अगर आपको वो कॉम्बिनेशन क्लियर होगा ना कि बायोस्प्रिंगा किसके लिए दी जाती है, या किडनी किसके लिए दी जाती है, या डाई केयर किसके लिए दी जाती है, तो आप पेशेंट को बहुत रिलक्टेंट होगे ट्रीट करने में. Then you will really get lost somewhere. You will actually lose interest also in the business for earning or for working for the patient's treatment. So here it plays a very important role for us to understand the supplement and its usage. तो बायोस्प्रिंगा जैसे है, बायोस्प्रिंगा it has got what? It has got 3 supernatural supplements. It has got 3 supernatural foods जो हम हैं. Okay? उसमें से एक is I'm only touching on the moringa part. Because मोरिंगा मैंने खुद पेशेंट्स को बहुत रिकमेंड किया था वैसे आयुर्वेदा के लिए. Why do moringa is more important? क्योंकि it has got all thing what a human body needs. मतलब विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई. अगर मैं उसकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी लेती हूँ, कैल्शियम, जो हमको दूध से मिलती है, बट इसमें क्या है, अराउंड 8 times more than a milk it has got a calcium. If I now talk about the iron, it has got vitamin A, B, C, D, E. इसमें जिंक भी है, इसमें आयरन भी है, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें मैग्नीशियम भी है. तो अगर मैं अभी आयरन को लेती हूँ फॉर एन एग्जांपल, आयरन हमको पालक से मिलती है, राइट? तो इसमें जो पालक के कंपोनेंट्स है, इट इज मोर 30 times. So it becomes a super natural food for curing antibacterial issue. एंटीऑक्सीडेंट के थिंग के तौर पे वो एक्ट करता है. अगर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है तो जो आपका किडनी का प्यूरिफिकेशन होने चाहिए, इट बिकम्स मच मोर फास्टर. सो इट विल हेल्प यू वेयर जहाँ पे पेशेंट की स्वेलिंग है, जहाँ पे पेशेंट को इश्यूज है, एसिडिक रिएक्शंस है, तो दिस विल हेल्प देम टू सपोर्ट. प्लस अगर किसी को डेफिशिएंसी भी है, स्टिल ही कैन हैव इट. कोई बोलता है नहीं मेरे को आयरन डेफिशिएंसी है, यू कैन ऑलवेज गो अहेड विद बायोस्प्रिंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम. सो दिस पेशेंट व्हेन दे आर इन अ क्रिटिकल कंडीशन, जैसे आपके पास आते हैं कैंसर पेशेंट, अभी तो आई एम इन द हॉस्पिटल, आई एम सीइंग वन कैंसर पेशेंट इज ओवर हियर हु हैज गॉट माउथ कैंसर. वी आर ट्रीटिंग हिम नेचुरली. उसको भी हमने बायोस्प्रिंगा सप्लीमेंट बोली है देने के लिए. तो व्हेन यू सी सच लाइव केसेस, यू नो व्हाई एंड व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट सप्लीमेंट इज. इट इज गुड फॉर एंटी इंफ्लेमेटरी, इट इज गुड फॉर एंटीबैक्टीरियल. तो जहाँ पे आपको मालूम है इन्फ्लेशन कहाँ पे आता है, ऑस्टियोपोरोसिस में आती है, स्वेलिंग जो आती है हमारे टांगों में. So this helps the patient not only to overall, it heals a person by his liver, kidney. So जहाँ पे हमारी मेन डिजीजेस होती है, ये तीनों एरिया ही होती है. कैंसर की जड़ किडनी होती है. Is this clear?
Yes, yes, यहाँ पे clear. clear है? Yeah. So tomorrow I'll join on time so that I can give you more in little bit in depth in supplements कि आप connect कर पाओगे और किस तरीके से हम बोलते हैं. And then I will take the live case of my mom. And Ma'am, anyway, one today question, one itself is question. 11. Yeah. Tell me, Naru Shubham. Yes, ma'am. Biospringa contains 3 supernatural supplements on which, yes, we have decided Moringa is one, second is iron, and third is See, it is like vitamin A, B, C, D. Okay. And then Okay. comes zinc. Zinc is there in that product. Iron is there in that. Magnesium is there in that product. तो मैग्नीशियम क्या करता है, उसको रिट्रेन करता है ना. आपका जो खाते हो मैग्नीशियम क्या करता है, उसको अच्छे से पकाने की कोशिश करता है राजा. yes, ma'am, मेटाबॉलिज्म के लिए और मसल रिलैक्स के लिए मैग्नीशियम का. Yes. तो जब जहाँ पे आपके मेटाबॉलिज्म अच्छे होंगे, जब आपके मसल्स रिलैक्स होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप पेशेंट को स्वेलिंग के लिए हील करोगे. ऑस्टियोपोरोसिस का केस होगा तो आप ट्रीट कर पाओगे ना. Got it, ma'am. यहाँ पे Thank भी you. उसको स्वेलिंग. Yeah, thanks. Okay, let us wind up today. Have a good day. Thanks. Take care.